अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मुनशरा महर। शराब और दूसरी नशे आवर चीज़ें आजकल तेज़ी से समाज में फैलती जा रही हैं। बहुत से लोग इस लत का शिकार हैं और समाज को इस बुरी लत से बचाने के लिए बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रखे जाते हैं। क्या इन प्रोग्राम से लोगों की इस्लाह होगी? क्या लोगों को आगाह कराना ज़रूरी है या फिर असल जड़ ही काटनी चाहिए? इसी तरह शहर हुबली में बरोज़ जुम्मा बतारीख 30 दिसंबर 2022 को हुडगिरी हॉल मंटूर रोड में SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से नशे करने की नुकसानात के मुतल्लिक़ एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को शराब और गांजे जैसी नुकसानदेह और जानलेवा चीज़ों से उसके नुकसानात से आगाह कराना था। समाज में फैल रही इस बुराई को ख़त्म करना उनका मकसद था। इस प्रोग्राम में उन्होंने उन चीज़ों से सेहत को होने वाले नुकसान के मुतल्लिक़ बताया और प्रोग्राम कामयाब भी रहा। शराब नोशी एक ऐसी समाजी बुराई है जिसने घर के घर उजाड़ कर रख दिए हैं। ये समाजी बुराई न सिर्फ हमारे शहर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले रखा है। हर जगह नशे की वजह से होने वाले मामले सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले गुजरात के एक गांव में भी शराब नोशी की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई थी। समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम के तहत लोगों को उजागर करने की कोशिश की गई है। लोगों को कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आजकल नौजवान शराब नोशी की हालत में खून खराबे तक उतर आए हैं, जिससे समाज में एक खौफ तारी हो गया है। खून खराबे के ऐसे दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं। इसमें से 50% मसले तो नशे आवर चीज़ों की वजह से होते हैं। लोगों को जागने की ज़रूरत है। अपने आप को अपने अच्छे मुस्तकबिल की तरफ माइल करना ये नौजवानों की ज़िम्मेदारी है। आज का नौजवान देश का अच्छा मुस्तकबिल बना सकता है। अपने वतन को इन बुराइयों से बचाएं और कोशिश ये भी करनी होगी कि ये जड़ से ख़त्म हो। एक कदम उसको रोकने की है तो दूसरी कोशिश उसको पूरी तरह ख़त्म करने की होनी चाहिए। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಇವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ SM ಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಆಗಲಿ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಂದರೆ ಗಾಂಜಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಫೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸರಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಕೂಡ ರುಮಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಶೆಯ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಸ್ತಮಾಲ ಮಾಡೋದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ SDPI ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಬರೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತರ ಯುವಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಯುವಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರೇ ನಮ್ಮವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮವರು ಜಾಸ್ತಿ, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಆರೋಪವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು, ಸರಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಕ್ತುಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. आज के दिन खासकर SDPI से वाबस्ता नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक समाजी और दीनी बुराई, दीन जिसे बदतरीन समझता है,
से समाज से निकालने के ताल्लुक से, इसे दूर करने के ताल्लुक से इनकलाबी बीड़ा जो उठाया है उसके लिए काबिल मुबारकबाद। आज के मजमूए में दलित और मुसलमान नौजवान रहे ज़्यादा। हम देखते हैं कि हुगली की जराइम की तारीख़ में ख़ास करके पिछले 2-3 महीने के अंदर ओल्ड हुगली के एरिया में और वहाँ से करीब में जो स्लम्स जुड़े हुए हैं वहाँ पर जो जराइम हुए, जिस तरह के जराइम पेश आए, खास करके छुरा मारने की वजह से, चाकूबाजी की वजह से लोग जाकर के किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उसके पीछे अगर हम सोचें तो ये जो कुछ भी क्राइम्स हुए हैं इसके पीछे मंजर में नशा है। जो कुछ भी हुआ है वो नशा की हालत में हुआ है। तो इन जराइम को ख़ास कर नज़र में रखते हुए नौजवानों ने SDPI ने इस बुराई को दूर करने के लिए जो तहकीकी कदम उठाया और इसकी स्टडी करने के बाद जिन लोगों को पुलिस अरेस्ट की है, जाकर के जो कैद में आज मौजूद हैं, तो जो आज जो क्राइम्स पेश आए हैं उसके पस मंज़र में नशा रहा है। तो फिर इस नशा को दूर करने के ताल्लुक से SDPI ने जो कदम उठाया, ख़ासकर दलित और मुसलमान नौजवानों में जो बेदारी पैदा करने के लिए, अच्छे अखलाक पैदा करने के लिए, भलाई को समाज में लाने के लिए, इंसानी अक़दार को उठाकर पकड़ने के लिए जो कदम उठाया है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इस तरह के प्रोग्राम्स ये आज अच्छी ज़रूरत है। ख़ासकर नौजवान पिछले 20-30 साल में न सिर्फ नशा और दवाइयाँ, ख़ासकर बीमारी क्योंकि जो आइन वजह है आज, जैसे गुटखा है, इसके नतीजे में कैंसर और दीगर बीमारियाँ जो है तो नौजवानों को अपने लिपेट में ले रहे हैं। उसे दूर करने के ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि ये बेदारी का काम जो है ये न सिर्फ यहाँ पर हुगली के हद तक महदूद रखें बल्कि अलग अलग शहरों में, देहातों तक इसे फैलाने की कोशिश करेंगे। और ये नौजवान जो हैं एक टीम बना करके मैं SDPI के दलित और मुसलमान नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि इसे एक दीनी फरेज़ा समझ करके, इस्लाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा दीन कुरान हकीम ख़ास करके दुनिया की ज़मीन की गलीज़ तरीन चीज़ यानी उम्मुल ख़बाइस के नाम से शराब को याद करता है। गलीज़ तरीन चीज़ अगर कोई है ज़मीन पर तो वो शराब है। तो ये उम्मुल ख़बाइस का शिकार जो कौम हो चुकी है वो मैं समझता हूँ अपने दीन से बेइंसाफ़ी कर रही है, अपने ईमान से बेइंसाफ़ी कर रही है। ये बेदारी पैदा करने की और नौजवानों में के हद तक ये बात को ला कर उनके अंदर बेदारी पैदा करके इससे दूर रहने की, न सिर्फ दूर रहने की बल्कि अपने दोस्तों अहबाब को दूर करने की कोशिश करें। और ख़ास करके दलित और मुसलमान नौजवान खास मिल करके इसमें पूरी कोशिश करेंगे और ये समाजी बुराई को दूर करने में जो है पूरी तरह से एकजुट होकर के काम करेंगे। मैं इसका यकीन रखता हूँ कि ये कोशिश इनकी जारी रहे और पूरे सूबा भर ये पैगाम चला जाए हुगली से जिसका आगाज़ हुआ है कि पूरे सूबे भर में ये बात है और इससे दूर रहने की कोशिश नौजवान। एक शायर ने क्या खूब कहा था, सब्र खुददारी दिलदारी हक परस्ती अब कहाँ, सब्र खुददारी दिलदारी हक परस्ती अब कहाँ, रख लिया एक अच्छा सा नाम, रख लिया एक अच्छा सा नाम और मुसलमान हो गए। सिर्फ अच्छे नाम रख के मुसलमान बनना काफ़ी नहीं है। अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसे निकाल कर फेंकिए, नशे से दूर रहिए, तभी जाकर आप एक परफेक्ट मुसलमान बनेंगे, परफेक्ट इंसान बनेंगे, परफेक्ट हिंदुस्तानी बनेंगे, परफेक्ट बेटे बनेंगे, परफेक्ट भाई बनेंगे। तो सभी नियत कर लें कि यहाँ पे आपने अभी जो कुछ भी सुना उस पर अमल करें। तो मैं इतना कहकर अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।